Before we start with the discussion, first of all, thank you so much for everyone who has joined in. I really respect you taking out time to join this particular session, and just to avoid any confusion or any future conflict of interest, etc. I'm sharing my standard disclaimer because today's call is expected to be an interactive call. So I'm sharing my standard disclaimer that I'm not a registered portfolio manager or registered investment advisor with SEBI as on date. The discussion which we are doing today is completely from an educational purposes itself. If you're continuing to be part of this discussion, then please note that I will be using this recording for uploading on YouTube channel for other people to refer to and for their own usage in future. If you feel that you're not comfortable for this content to be uploaded with your voice, your pics, and your name, then request you to kindly drop out from this session immediately. By continuing to be part of this session, you are allowing me to using all the content for future. From a disclaimer perspective, this complete webinar is being organized from an educational purposes only. All suggestions, advice, or guidance provided by me should be treated and considered for educational purposes only. Any investment decision should be made by participants of this webinar only on their own risk after due consultation with their investment advisor. The presenter of this webinar will not be responsible for any loss, profit, opportunity lost, or any other damages that may be borne by any participant due to any topic discussed on this webinar. This is a standard thing which I wanted to share with you all so that it is not creating any confusion for future. And let's start. I will keep this particular slide on while we are talking for other small topics which you may want to raise. So this is an interactive session. Thank you very much, Vishalji and Harshji, for joining in. I'm happy to take any questions which you want to discuss today. I know there were multiple topics which everybody requested me कि अभी आज की डेट में मार्केट कहाँ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, या स्टॉक मार्केट में कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं शायद आप लोगों ने, तो उसके बारे में क्या मेरा व्यू है. दिस इज व्हाट यू वांट टू नो. सो आई एम हैप्पी टू टेक अप दोस क्वेश्चंस. Over to you. Maybe we'll go one by one because we have got only 3 participants right now. So maybe we'll start in an alphabetical order. Welcome, Harshji. Request you to let me know if you have any specific questions. Kindly unmute yourself if you want to ask any specific question. If you don't have any question, then I will just move to Vishalji for asking his questions. Sir, may I ask? Yes, Vishal, you can ask now. ठीक है सर, हिंदी में कर लेना बात. बिल्कुल हिंदी में कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी सर, एक्चुअल में एक न्यूज तो एवरग्रांडे की आई थी, चाइना की, लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती कि अगर इतनी पुरानी वो न्यूज हो चुकी है तो हमें मार्केट पे इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखता. मतलब कोई भी न्यूज है उसका 10-15 दिन में तो इम्पैक्ट दिख जाना चाहिए. अब ये तो है नहीं कि वो अगर बैंकरप्ट होगी फ्यूचर में तब जाके उसका इम्पैक्ट आएगा, या इंडियन मार्केट इतनी अलग है, वर्ल्ड से लिंक्ड नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो. क्योंकि वन ऑफ द आर्टिकल सेड कि 300 बिलियन का उसने लोन उठा रखा है अराउंड 200 बैंक से चाइना के. तो मैं कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस बिल्डअप होगा ही होगा. एक वो था क्वेश्चन कि वो, मेरा क्वेश्चन एवरग्रांडे पे इतना नहीं है लेकिन टाइमिंग पे है कि कब इम्पैक्ट आना शुरू होता है किसी चीज का. दूसरा, ये मार्केट इतनी ऊपर हो गई है तो क्या निकालना चाहिए पैसा, क्योंकि पता नहीं चल रहा कि उसको क्या, मतलब एफडी वगैरह में करा के रख ले ताकि जब नीचे आए तो फिर वापस एंटर मारे, ऐसा कुछ.
दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। थैंक्स विशाल फॉर रेजिंग इट। आपने क्वेश्चंस रेज किए। सम questions have already been received by me on chat window as well. I will take them as well. Uh, so विशाल, पहले क्वेश्चन का आंसर है, एवरग्रांड चाइना की कंपनी है। इंडिया में एवरग्रांड का कोई खास मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं था, और ना ही किसी इंडियन रियल एस्टेट कंपनी को एवरग्रांड ने सपोर्ट किया हुआ है बाय इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ इट्स shares or any of its debts. That is the best part of it. So that's why India's real estate is untouched from a Evergrande story perspective. लेकिन क्या Evergrande का impact market में नहीं आना चाहिए? क्या उसका impact जल्दी आना चाहिए था, या इतने दिनों से ये market में news है तो अभी तक impact क्यों नहीं आया है? ये क्वेश्चंस आपके वैलिड हैं। एज फार एज चाइना का खुद का मार्केट इज कंसर्न, यू मस्ट हैव सीन, अगर आप शंघाई को ट्रैक करते हैं एज एन इंडेक्स, तो शंघाई इंडेक्स ने काफी डिक्लाइन देखा था उन 5 दिनों में, जिन 5 दिनों में इस एवरग्रांड की स्टोरी को मार्केट में आई थी। एट द सेम टाइम हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि एवरग्रांड का फॉल आउट जो हुआ है वो क्या रियल फॉल आउट है, या it is probably just something which can be adjusted by Chinese government in future. मेरा personal view ये है कि Evergrande is not something जो आज create हुआ है. It's a long lasting thing which was there in Chinese market, whereby every infrastructure project or any real estate project which was being put in place in China was heavily funded by companies like Evergrande. Evergrande is not the only company. Uska debt ko default karna is a risk, correct, from a Chinese economy perspective, और चाइना की इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट भी आया है फ्रॉम अ शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव। वहाँ की चाइनाज इंडेक्स जो शंघाई इंडेक्स है वो डाउन भी गई थी। अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपने देखा होगा उसके अगले ही 2 दिन में 5% 4% डाउन गया था शंघाई का मार्केट। 5% किसी भी इंडेक्स का गिरना is considered to be a significant change in the market sentiments. Having said that, Chinese government एक closed economy है, whereby the Chinese continue to manage their currency in such a way that the impact is minimized by them, and as a result आपको उतना impact अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसके systemic impact आएंगे, दूसरी countries पे भी आएंगे जहाँ पे Evergrande का major investments हैं, but लकीली इंडिया में कोई एवरग्रांड का मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इसलिए ना ही एक कोई फंड एग्जिट के चांसेस हैं, ना ही कोई एडिशनल सिस्टमिक क्रिपल का पार्ट बनने के इंडिया के चांसेस हैं। दैट्स व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। बाकी इस बारे में मल्टीपल थॉट्स मार्केट में चल रहे हैं। आई एम श्योर अगर आपने इस न्यूज को तवज्जो दिया है तो आई एम श्योर कि आप दूसरे न्यूज़ पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह सब ने इसको काफी डिटेल में कवर किया है। आप चाहें तो उस पे जाके एडिशनल व्यूज और देखिएगा। मेरा व्यू मैंने आपको पर्सनली शेयर कर दिया है। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन था कि मार्केट बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए, और पैसा निकाल के जब मार्केट गिरेगा तब हम उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं, यू आर नॉट अ ट्रेडर, रादर यू आर अ इन्वेस्टर, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। मार्केट क्योंकि आज आपको हाई दिख रहा है, यही मार्केट 2012 में लोगों को हाई दिख रहा था, यही मार्केट 2018 में भी लोगों को हाई दिख रहा था, और 2018 से लेकर 2020 तक जब तक ये कोविड की न्यूज नहीं आई, तो आपने ये भी देखा कि मार्केट कितना कंसोलिडेटेड रेंज में 2000-3000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी 2 साल तक ट्रेड करी थी। उस ट्रेडिंग के बाद यह हुआ है जो आपने देखा है पिछले 1.5 साल में हमने एक के बाद एक हजार पॉइंट्स के माइलस्टोन्स कवर कर लिए। बेसिकली वी हैव टच्ड न्यू हाइज। मार्केट जब न्यू हाई को टच कर रहा होता है विशाल जी, तो मेरा मानना है कि 2 चीजें जो काम कर रही होती है। एक, मार्केट की लिक्विडिटी उस पर वर्क कर रही होती है। दूसरा,
मार्केट के सेंटिमेंट्स भी हो सकता है चेंज हो रहे हो। अब इस चीज में हमें ये ध्यान देना है कि लिक्विडिटी तो बड़ी ही बड़ी है, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसा आया है। और पैसा क्यों आया है ये हम शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि रियलाइज इसलिए हो रहा है ये पैसा, या रिटेल इन्वेस्टर के पास एडिशनल पैसा कहाँ से आ गया, वो ये है कि सब लोग वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इन वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन विच इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट्स. Okay, I'm not talking about farmers, I'm not talking about below poverty, and I'm not talking about those people who have still not seen anything in stock markets. Stock market उन्होंने ही देखा है जो मिडिल इनकम ग्रुप या हायर मिडिल इनकम ग्रुप या सेमी हाई नेटवर्थ के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने न्यू एंट्री करी है। बाकी सब तो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग थे मार्केट में, ठीक है। राइट। तो अगर इन लोगों ने नई एंट्री करी है तो इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आया? इनके पास इसलिए पैसा आया क्योंकि इनकी ग्रॉस एक्सपेंसेस डाउन हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट एंड बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव टू स्टे एट होम टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज सेफ। उस चक्कर में उनके पास पैसा रहा है। पैसा रहने के कारण उन्होंने एक एवेन्यू के रूप में स्टॉक मार्केट को देखा है जहां पे उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो कि आपको दिख भी रहा है कि मार्केट बढ़ते हुए कितना पैसा दिया है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि क्या पैसा निकाल लेना चाहिए। मेरा बिल्कुल मानना है कि पैसा बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। अगर मैं उन इन्वेस्टर्स में से हूं जो मैं अगर ये बोलूं कि पिछले 25 साल इंडिया के गोल्डन पीरियड थे, तो अगले 50 साल इंडिया का प्लेटिनम पीरियड आने वाला है। ओके ओके, दिस इज हाउ आई विल कंपेयर इट। तो इस समय जिसने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के एफडी में पैसा मूव किया, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि वो अगले 50 साल तक अगर उस पैसे का रिटर्न देखेगा तो वो पाएगा कि निफ्टी में इन्वेस्ट ना करके या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके उसने शायद नेगेटिव रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 50 इयर्स का, मैं ऐसा बोल सक रहा हूं आज। लेकिन आने वाला समय तो आने वाला समय ही बताएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ बेस्ट चॉइस। विशाल जी, एफडी की एकमात्र क्वालिटी ये है कि आपका कैपिटल इरोजन नहीं होता है और आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। लेकिन ठीक है, स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो मानते हुए ही इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है उस अमाउंट के लिए। फुल अमाउंट मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी का सेविंग्स अमाउंट 100 रुपीज है तो अप्रोक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन द एज वो चेंज हो सकता है, लेकिन लेट्स से कि एज हो किसी की 30 से 40 साल, हाँ, और 40 साल ही ले लेते हैं सर। और 40 साल ले लेते हैं, और एवरेज रिस्क पैटर्न में आता है, वो थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी है बट रिटर्न भी उसको हाई चाहिए वगैरह। अगर इस कैटेगरी में आप अपने आप को पाते हैं तो आई थिंक आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड और उन्होंने उतना रिटर्न नहीं दिया जितना एनएससी के इंडेक्स ने या सेंसेक्स के इंडेक्स ने डायरेक्ट दिया है, तो आप एक बार अपने स्टॉक को वापस से रीअसेस जरूर कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट ना होए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इंडिया इज गोइंग टू हैव more and more investments from foreign direct investors, and we are going to be one of the biggest economies in next 15 years. ओके, आप 15 बोल रहे थे कि आपने पहले पहले मैं 50 बोला था? मैं 50 बोल रहा था, पहले मैं 50 बोल रहा था और अभी मैंने 15 बोला है। ठीक है, डन है, थैंक यू। I hope that answers your question. राइट, एग्जैक्टली सर, थैंक यू। मैं अगला क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक चैट विंडो पे एक क्वेश्चन आया है मुझे कि व्हाट इज योर व्यू ऑन डिक्सॉन शेयर, इज इट अ गुड बाय एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टारगेट। डिक्सॉन का शेयर मैं ट्रैक कर रहा था कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं फिर भी ऑनलाइन देख के आपको बता दूंगा। आई होप आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही हो, और मैंने एक चार्ट खोल रखा है अभी। चार्ट दिख रहा है सबको?
सर पीपीटी दिख रही है, प्रॉफिट मंत्रास फॉर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन। ओके, अब चार्ट दिखना चालू हुआ है? हाँ जी। ठीक है, डिक्सॉन का चार्ट है ये मेरा, जो मैंने खोल रखा है। आ, आपको चार्ट्स दिख पा रहे हैं अब सबको? राइट सर, दिख रहा है सर। ओके, आपको दिख रहा है, थैंक यू। सो डिक्सॉन इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। डिक्सॉन कंटिन्यूअस बाय जोन में चल रहा है पिछले 2 साल से। there is no way in this stock that you क्वेश्चन क्या था, मैं 1 मिनट देखना चाहूंगा जो क्वेश्चन पूछा गया था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप म्यूट किया है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? अब आ रही है। जी, डिक्सॉन का चार्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मेरा पर्सनल लेवल पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस शेयर ने अभी अभी अपने पुराने वीकली हाई को ब्रीच करने की कोशिश की है विद वेरी ह्यूज वॉल्यूम्स। आखिरी रीसेंट हाई जो इसने बनाया था वो 12 जुलाई 2021 को बनाया था, और उसके पहले वाला रीसेंट हाई 15 मार्च 2021 को बनाया था। 15 मार्च के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है ऑलरेडी, और 12 जुलाई के हाई के नजदीक क्लोज हुआ है, अभी क्रॉस नहीं कर पाया है। सो मेरा मानना यह है कि ये इसका शेयर अगर शेयर अगर एक दिन और इस रेट पर सस्टेन करता है, जिस रेट पर अभी ये चल रहा है 4850 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये शेयर 5200 रुपए हो जाएगा। 5200 रुपीज का टारगेट लेके मैं इसको बाय करने की सलाह दूंगा, और स्टॉप लॉस होगा इसका 4000 लेवल्स के आसपास का। बट इमीडिएट टारगेट 5200 आराम से बन रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 5200 के आगे भी बहुत लंबा जाएगा। फ्रॉम इमीडिएट चार्ट पर्सपेक्टिव ये मुझे फ्लैग चार्ट्स में भी दिख रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न जनरेट कर रहा है ये चार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज राइज, अप्रोक्सीमेट राइज इन नेक्स्ट 2 years फॉर दिस स्टॉक इज 2000 रुपीज। मतलब 4800 रुपए का शेयर है ये। 2000 रुपए जोड़ लें अपन तो 6800 का टारगेट मान के चलूंगा मैं अगले 2 साल में, 1.5 से 2 साल में। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, if the support and resistance strategy can be applied only on long-term investment or it can be applied in intraday or short-term trading? सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में अप्लाई की जा सकती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। लेकिन जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है। वो स्ट्रेटजी आप हर लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं एज अ पर्सनल पर्सन आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप उसको अगर इन्वेस्टमेंट लेवल पे अप्लाई करें, डेली चार्ट्स पे मिनिमम अप्लाई करें या 1 आवर चार्ट को देखते हुए अप्लाई करें, तो आपको सक्सेसेस ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू फेलियर्स। जब आप चार्ट देखते हैं, हमने पहले देखा हुआ है, मैंने पुराने ट्रेडिंग सेशंस में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से चार्ट्स को आप देख सकते हैं। चार्टिंग का एक पूरा सेमिनार लिया था मैंने। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो मैं आने वाले समय में फिर से एक बार एक सेशन करूंगा। लेकिन इस तरीके से 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, दीज आर ऑल चार्ट्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। और ये फ्री चार्ट है, आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। in.tradingview.com करके एक वेबसाइट है, ये आज की डेट में फ्री चार्ट्स प्रोवाइड करती हैं, और ये ही कंपनी है जो मल्टीपल अदर ब्रोकरेजेस हाउसेस और मनी कंट्रोल वगैरह ऐसी कंपनियों को भी चार्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में। बट इन्वेस्टर्स के लिए फ्री अवेलेबल है ये चार्ट्स। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन।
somebody is telling me they can't see the charts. अभी मैं डिक्सॉन के चार्ट पे हूं, सब लोग डिक्सॉन का चार्ट देख पा रहे हैं? प्लीज आप कंफर्म करेंगे, आप देख पा रहे हैं डिक्सॉन का चार्ट जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं? Kindly unmute yourself and confirm me if you can see the chart. सर मेरे को दिख रहा है सर, पहले से ही दिख रहा है। आपको दिख रहा है? थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी। Sir, I cannot see the chart. Chart is एक मे बी लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा उनको, या वो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी स्क्रीन की। हाँ, स्क्रीन की शिफ्टिंग करके देख लीजिए प्लीज। मेरे ख्याल से आपको चार्ट्स दिखने चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी, और विशाल जी देख पा रहे हैं प्लीज। Okay. अब दिख गए हैं आपको चार्ट्स? Yeah, I am trying. ओके, थैंक यू। Sir, I have continued. I have asked another question in chat. Which time frame to follow in short-term trading if we are following support and resistance? If you can please answer that also. For short-term trading, I will advise you to follow. For intraday trading, I will advise you to follow either 3 minutes or 5 minutes charts. Okay, but in support and resistance strategy, can we follow 3 minutes and 5 minutes chart? Will it work, or yes, it will work. It will work on 5 minutes chart for sure. In 3 minutes chart, you will have many supports and many resistances, but you will have to be very but you will have to be very sensitive about all resistances and all supports. You will have multiple stop losses, you will have multiple trailing stop loss. आपको बार-बार अपना stop loss और trailing stop loss को change भी करना पड़ सकता है अगर आप 3 मिनट के चार्ट को या उसके छोटे लेवल के टाइम जोन में अपने चार्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट में थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी आपके ट्रांजैक्शंस में। Okay. And sir, one more thing, in short-term trading, as you were suggesting that you would recommend support and resistance strategy to be more workable in short-term trading. So, in which time frame to follow in short-term trading, sir? Like for 10 or 12 नहीं, मेरे ख्याल से आपने गलत सुन लिया। मैंने ये बोला था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में शायद कम रहेगा उसका सक्सेस, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेवल पे जब आप करते हैं, जब आप डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल ज्यादा आपको सक्सेस रेशियोज देंगे। लेकिन अगर तो आप उसमें कितना टाइम फ्रेम, अगर लॉन्ग टर्म, अगर आप डिलीवरी बेस को लेके काम करते हैं तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट जनरली 15 से लेकर 45 दिन का होना चाहिए होराइजन, जब आप डिलीवरी बेस ट्रेडिंग करते हैं तो। Okay, and time frame should be daily. Yeah, time frame should be 1 hour or daily. Okay, okay. And sir, if you don't mind, if you have some 2 minutes time, can you please give an example? If you can show some chart with a support and resistance where it reaches that resistance, if it is you are comfortable, if you can show some stock मैंने with इसके that. ऊपर पहले भी सेमिनार दिया है, शायद आपने उसको ज्वाइन नहीं किया था। मैं कोशिश करता हूं इस सेमिनार में आपको उसको कवर करने की, क्विकली कवर करूंगा, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, सो दैट एवरीबॉडी एल्स कैन आल्सो सी इट। मैं ऐसा कुछ स्टॉक लेता हूं जो जल्दी से आपको ये चीज बता पाए। ये देखिए, ये मैंने जिंदल स्टील का एक चार्ट लिया है। जिंदल स्टील का चार्ट देख रहे हैं अपन, ये डेली चार्ट है, मैंने डी पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये डेली चार्ट है। जब आप इस स्टॉक को देख रहे हैं तो जिस लेवल पे आकर ये स्टॉक कभी वापस बाउंस किया हो, उस लेवल को बोला जाएगा सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, इस लेवल पर आके ये स्टॉक ने यहाँ से बढ़ा था, 29 जनवरी के पहले ये गिर रहा था, फिर यहाँ से ये बढ़ना चालू हुआ। ओके, ओके, सो आई एम सॉरी, सो इस लेवल पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज सपोर्ट। ये जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहेगा ये एक सपोर्ट का काम करेगा। जब स्टॉक इस पीरियड के नीचे आ जाएगा तो ये ही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपसे बात करते करते मैंने 3 लाइंस बना दी हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ पे गिर के स्टॉक बढ़ने के बाद गिरना चालू हुआ। ये जो हाई बनाया है उसने, उसको रेजिस्टेंस बोला जाएगा। फिर उसके बाद नीचे सपोर्ट, फिर उसके बाद ऊपर जब बढ़ा तो आप देखिए इस हाई को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल आई है। तो वो कैंडल जब मूव करी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव करी है, और इसे रेजिस्टेंस कहा जाएगा उस समय जब स्टॉक नीचे था।
लेकिन आज की डेट में यही सपोर्ट का काम करेगा। और ये देखिए आज की डेट में कितना मैजिकली आपको समझ में आएगा। ये रेजिस्टेंस था 4 मार्च 2021 का, उसके बाद स्टॉक बढ़ता रहा, उसके बाद गिरना चालू हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर गिरा। लेकिन आप देखिए 1 2 3 बार इस स्टॉक ने इसी लेवल से बाउंस बैक लिया है। मतलब Yes, sir. Yes, 355, sir. मतलब This is 355 इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपके पास ये शेयर हो तो आप कभी भी इसका 355 का स्टॉप लॉस लेके इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 355 के नीचे जाए तो आपको सोचना चाहिए कि क्या मुझे इस शेयर से एग्जिट होने की जरूरत है फॉर अ शॉर्ट टर्म। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट okay. टर्म एग्जिट एंड एंट्री अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए इस्तेमाल होता है। Okay, sir. Okay. Thanks, sir. बहुत अच्छे से बताया सर आपने. Thanks, थैंक sir. यू, थैंक यू। Okay. किसी और पार्टिसिपेंट को कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना फोन अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, या फिर चैट विंडो में भेज दीजिए। मेरे हिसाब से किसी ने कोई और क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूं, सो दैट अगर कोई म्यूट अपने आप को नहीं कर पा रहा हो तो वो भी क्वेश्चन पूछ सके। हर्ष हर्ष जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। विशाल जी, अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ लीजिए। नहीं सर, आई एम गुड फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। देन आज का कॉल यहीं क्लोज करते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करूंगा कि देयर आर सम स्पेसिफिक प्रॉफिट मंत्रास फॉर सक्सेसफुल वेल्थ क्रिएशन। ऑलवेज इन्वेस्ट वाइजली, डोंट इन्वेस्ट ऑन समवन्स एडवाइस ब्लाइंडली। Have patience, don't panic anytime. Follow your entry and exit rules and invest in F&O only if your portfolio size is more than 5 lakhs. Thank you so much. Thank you so much everyone for joining in, and thanks for your support. Thank Looking you, sir. forward to have more of these seminars in future. Bye. Have a nice day. Yes, sir. Thank you.